3 روزہ پاک سعودی سرمایہ کاری کانفرنس کا آج سے اسلام آباد میں آغاز 50 اہم سعودی شخصیات کا وفد شرکت کرے گا۔ تجارتی وفد میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 30 کمپنیز کے نمائندے شامل ہوں گے۔ گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات جاری۔ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کی سربراہی میں قائم 4 رکنی کمیٹی نے سابق نگراں وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر کو آج طلب کر لیا۔ نگراں دور کے سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی محمد محمود انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش بیان ریکارڈ کروا دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 3 مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان کی قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل اور چھینا گئے سامان برآمد کر لیا گیا۔ قاہرہ میں جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ قیدیوں کے تبادلے اور 6 ہفتے کی جنگ بندی پر گفتگو ہوئی۔ خبر سے ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے قیدیوں کے تبادلے کے ابتدائی شرائط کی منظوری دے دی۔ 20 سے 23 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر بات چیت ہوئی۔ 2024 اب تک سب سے بڑا اسکینڈل گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات کا آغاز۔ سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کی سربراہی میں قائم 4 رکنی کمیٹی کا طویل اجلاس۔ کمیٹی کی جانب سے سابق سیکرٹریز فوڈ سیکیورٹی سے پوچھ گچھ۔ کمیٹی نے سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بھی پوچھ گچھ کے لیے بلا لیا۔ سابق نگراں وفاقی وزراء شمشاد اختر، گوہر اعجاز سے بھی تحقیقات ہوگی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے بھی معاملے کی انکوائری کی جائے گی۔ کمیٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نگراں وفاقی کابینہ ارکان کا گندم درآمد کے معاملے پر اہم کردار ہے۔ ان سے انکوائری کے بغیر رپورٹ نامکمل ہوگی۔ کمیٹی نے کسٹم، کراچی پورٹ اور FBR کے متعلقہ افسران سے تفتیش مکمل کر لی۔ گندم اسکینڈل پر نون لیگ کے قائد ان ایکشن۔ نواز شریف نے پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف کو بلا لیا۔ وزیر اعظم کی سربراہی سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل سے ملاقات۔ نگراں حکومت میں گندم کی درآمد کی ہر لحاظ سے مکمل شفاف تحقیقات کا حکم۔ دستیاب ریکارڈ اور دستاویزات کو سامنے رکھ کر سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت۔ اتنے اخراجات ہونے کے باوجود ہم 2800 میں 3000 میں سیل کریں تو ہمارے اخراجات ہی نہیں پورے ہوتے ہیں۔ باردانہ نہیں مل رہا تو پھر گندم جڑی ہے جی وہ خراب ہو رہی ہے دن بدن۔ یہ باردانہ من پسند لوگوں کو دیا جا رہا ہے، ہم جیسے غریب آدمیوں کو نہیں دے رہے۔ گندم کا باردانہ کب ملے گا؟ پنجاب کے مختلف شہروں میں کسان گندم کی فصل کاٹ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ہر گزرتے دن کسان مشتعل کہتے ہیں منڈی میں آڑتی گندم کی کوڑیوں کے مول لگاتا ہے، مڈل مین سستے دام گندم بیچنے کا لالچ دے رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 750 ارب روپے کے جو سیلز ٹیکس ہیں وہ ہضم کی جا چکے ہیں، ہڑپ کی جا چکے ہیں۔ یہ پرسوں مجھے بتایا اب 2700 ارب روپے آلریڈی انڈر لیٹیگیشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے تو ہندوستان کے باپ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ ٹریبیونل ممبرز یہ تو کام کریں یا تو گھر جائیں، محنت کریں گے تو ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا FBR میں شاندار کارکردگی دکھانے والے افسران کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب۔ بولے ایسا افسر برداشت نہیں جس کی ناک کے نیچے کرپشن ہو اور وہ ایکشن نہ لے۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف کرپشن، فراڈ اور لالچ کی نظر ہو رہا ہے۔ آڈیو لیکس تحقیقات کیس سے متعلق اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے DG IB، DG FIA اور چیئرمین PTI اور پیمرا کو توہین عدالت کے معاملے میں ابتدائی نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس بابر ستار پر اعتراض کی درخواستوں کی عدالت نے بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا۔ PTA، FIA، IB، پیمرا کی جج پر اعتراض کی درخواست خارج۔ درخواستیں دائر کرنے پر چاروں اداروں پر 5-5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ فیصلے میں مزید کہا گیا چاروں اداروں نے درخواستوں کے ذریعے جج کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ نان فائلر سے ٹیکس وصولی کھٹائی میں پڑ گئی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو آمنے سامنے۔ PTA نے 5 لاکھ سے زائد سمز بلاک کرنے کی مخالفت کر دی۔ PTA کا کہنا ہے کہ نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کا عمل ہمارے نظام سے مطابقت نہیں رکھتا۔
नॉन फाइलर्स को नई सिम्स के इजरा पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। कानूनी तौर पर पीटीए सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं, सिम्स ब्लॉक करने से मुतालिक तरीक़ेकार तय किया जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठ, रियासती रेट कमजोर बनाने वालों के खिलाफ तरमीमी कानून लाने का फैसला। फ़िक़ा तरमीमी बिल 2024 में 10 से ज़ायद अहम तरामीम तैयार कर ली गईं। तरमीमी बिल के ज़रिए डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अथॉरिटी कायम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़रिए सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। साइबर फ्रॉड, साइबर बदमाशी और स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने, रियासती रेट कमज़ोर करने पर सख्त सज़ाएँ और जुर्माना होगा। फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जाफर खान मंदुखेल गवर्नर बलूचिस्तान और सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब होंगे। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अरसाल करदा नामों की मंजूरी दे दी। मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ये कि बहैसियत गवर्नर सूबर खैबर पख्तूनख्वा। ये कि बहैसियत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने फैसल करीम कुंडी से हलफ लिया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि एतमाद पर पीपल्स पार्टी की क़यादत का मशकूर हूँ। सूबाई हुकूमत को दावत देता हूँ कि मिलकर वफाक से सूबे का हक मांगें। पूरी कोशिश होगी कि सूबे और मरकज़ के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँ। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मसाइल को हल करेंगे। समाजी मुआहिदा है लोगों के दरमियान, इस सिलसिले में हम आए थे। 8 तारीख को आइन की बालादस्ती पे सेमिनार समझें, जिसमें हम जर्नलिस्टों को भी बुला रहे हैं, दानिश्वर लोगों को भी बुला रहे हैं, अल-खुलफैम के लोगों को भी बुला रहे हैं। इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की एहतजाजी तहरीक में तेज़ी। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन रहनुमाओं की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। हाफिज़ तैमूर रहमान को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की दावत। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद अचकज़ई बोले, आइन की बालादस्ती के लिए इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा, मुल्क में इस वक्त जंगल का कानून है, मैंडेट किसी को मिला, हुकूमत में कोई और है। हाफिज़ तैमूर रहमान का कहना था कि आइन और जमहूरियत की बालादस्ती पर हमारा उसूली इत्तेफाक है। जमात इस्लामी अपोजिशन के एहतजाज में ज़रूर शरीक होगी। जमात इस्लामी आपने सेमिनार की दावत दी है, इस दावत को हम कबूल करते हैं और इंशाल्लाह जमात इस्लामी की नुमाइंदगी इसमें होगी। हम मशावरत करेंगे और सेमिनार ज़ाहिर है जमहूरियत की बालादस्ती का होगा और उस पर सब बात करेंगे, तो हम पूरी बात करेंगे। जमात इस्लामी को तो जचता भी है कि जमहूरियत पे वो बात करें। सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है। इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो इस वक्त इस बात का हामी हूँ कि अगर कोई डायलॉग होना है तो नेशनल डायलॉग हो, जिसमें तमाम तर एस्टैब्लिशमेंट है, हमारे अदलिया है, हमारी सियासी जमातें हैं, दूसरे लोग जो हैं, जितने भी पावर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद हों। सिलेक्टिव मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और सियासतदानों समेत कौमी मुकालमे की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की कोशिशों को ला हासिल करार दे दिया। कहते हैं 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला किया गया, पार्लियामेंट के इजलास में वाक़े की मजम्मत करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला। पाक फौज ने 6 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। कोयटा के इलाके शालकोट में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला। जवाबी फायरिंग में एक दहशतगर्द मारा गया। दीगर 3 साथियों ने एक घर में पनाह ले ली। पुलिस से मुकाबले में बाकी दहशतगर्द भी मारे गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलज़मान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और छीना गया सामान बरामद कर लिया गया। रावलपिंडी में कलदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक
हलाक दहशत गर्दों से धमाका खेज मवाद दस्ती बम बरामद हुए हैं। हलाक दहशत गर्दों की शनाख्त नसीबुल्लाह और एहसानुल्लाह के नाम से हुई। गजा में काबिज फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। शुजाइया, अल-ज़हूर और अल-बरीज कैंप पर बमबारी। नसीरात कैंप, खान यूनिस, दीर अल-बला और रफा में भी हमले। 24 घंटों में 26 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की कुल तादाद 34,622 हो गई। अल-क़साम ब्रिगेड के भी काबिज फौज पर जवाबी वार। जनूबी लबनान से हमले में इसराइली तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी जामियात में गजा के हक में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई। एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए। 400 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, वाशिंगटन के साथ कनाडा के जामियात में भी एहतजाज। बरतानिया की न्यूकैसल, ब्रिस्टल, लीड्स, शेफील्ड समेत मुतादिद जामियात में भी मुजाहिरे। अमरीकी सदर ने जामियात में एहतजाज पर खामोशी तोड़ दी। बोले, एहतजाज का हक सबको है मगर किसी को अफरा तफरी फैलाने की इजाजत नहीं। हिस्पानवी ला लीगा टाइटल का फैसला हो गया। बार्सिलोना को गिरोना ने गैर मुतवक्के तौर पर 2-4 गोल से शिकस्त देकर रियल मैड्रिड को चैंपियन बना दिया। ये ला लीगा में रियल मैड्रिड की 36वीं ट्रॉफी है। मिडफील्डर जॉर्ज बेलिंघम की रियल मैड्रिड की कामयाबी का अहम किरदार। पहले सीजन में 36 मैचेस में 18 गोल स्कोर किए। कौमी क्रिकेट टीम ने दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड की तैयारियां शुरू कर दी। खिलाड़ियों की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 10 मई से होगा। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का मलेशिया में आगाज। पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में मेजबान मलेशिया को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। मैच में सुफियान खान ने हैट्रिक बनाई। जिक्रिया हयात और अबू बकर महमूद ने एक गोल स्कोर किया।